شکم میں نہیں تھا تب بھی تیرا وجود کہیں نہ کہیں تھا، جب تو اپنے باپ کے سرگوں میں نہیں تھا تب بھی تیرا وجود کہیں نہ کہیں تھا، اور جب تو باپ کے سرگوں سے نہیں تھا اس سے پہلے بھی تیرا وجود تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے روحوں کو پیدا فرمایا، عالم ارواح میں روحوں کو رکھا۔ عالم ارواح میں روحیں کیسی تھے؟ اب عالم ارواح میں جیسی صورت میں بھی روحیں نہیں ہوں، ان روحوں کو منتقل کیا گیا۔ اب وہ روحیں کہاں سے منتقل ہوتی ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ کے پاس آتی ہے۔ اب ذریت آدم کے اندر ایک ایک انسان کی ذریت موجود ہے۔ آج جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم سے لے کر اب تک اور تا قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب کی ذریت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ اب ذریت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کچھ تو ایسے تھے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ لال چونٹیوں کی شکل میں ذریت موجود تھی، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کالی چونٹیوں کی شکل میں ذریت انسانیت موجود تھے، یعنی ہم اور آپ جب ماں کے شکم میں نہیں تھے تب اس سے پہلے بھی ہم اور آپ تھے، جب باپ کے سلب میں نہیں تھے اس سے پہلے بھی ہم اور آپ تھے، جب وہاں بھی باپ کے سلب میں نہیں تھے یعنی اس سے پہلے دادا کے سلب میں تھے، دادا کے سلب میں نہیں تھے پردادا کے سلب میں تھے، پردادا کے سلب میں نہیں تھے، سکر لکڑ دادا کے سلب میں تھے، لکڑ دادا کے سلب میں نہیں تھے، سکر دادا کے سلب میں تھے، ایسے ایسے نسبتاً جوڑتے چلے جائیے حضرت آدم علیہ السلام کے سلب میں تھے، مگر جب آدم علیہ السلام کے سلب میں نہیں تھے تب آپ کا وجود کہاں تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ زمین کی سطح پر چلے جاؤ۔ پہلے بھیجا کسے جاتا ہے؟ پہلے جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اے زمین پر جاؤ اے جبریل اور زمین سے خاک کو اٹھا کر کے لاؤ تاکہ اس سے انسان کو بنایا جائے گا۔ غور کرنا مسلمانوں، آج 40ویں کی محفل ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں 40واں نہیں کرنا چاہیے، مگر ان سے کہہ دو ارے تمہارا 40واں نہ جانے کتنی بار ہو چکا ہے، آؤ اسی 40ویں کی روشنی پر میں بیان کرو اور اسی پر اپنی تقریر کا اختتام کرو۔ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے ولادت کے پہلے جب آپ کے وجود کو تعمیر کیا گیا تھا اس سے پہلے جبریل امین کو بھیجا گیا، اے جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ اب وہ جبریل آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگتی ہے، زمین سسکنے لگتی ہے، اے زمین تو رو کیوں رہی ہے، اے زمین تو نالا کیوں ہو رہی ہے، اے زمین تو گریہ کیوں کر رہی ہے؟ زمین نے عرض کیا تھا اے جبریل علیہ السلام میں وہ اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے وجود سے انسان کو وجود دیا جائے گا، وہ انسان جب دنیا میں آئے گا میرے سینے پر وہ انسان ہوگا، میرے حصے کا وہ انسان ہوگا، مگر اسی زمین پر رہ کر کے جب رب کی کبریائی بیان کی جائے گی تو وہ انسان ادھر ادھر چہل قدمی کرے گا، جب اس کے رب کی کبریائی بیان کی جائے گی تب وہ انسان ان محفلوں سے بھاگ جایا کرے گا، جب میرے رب کی پاکی بیان کی جائے گی اور جب مؤذن صدائے دے گا اللہ اکبر کی تب وہ انسان اذان کی جانب نہ بڑھتے ہوئے بلکہ نماز سے کوسوں دور بھاگ جائے گا اور اسی زمین پر رہ کر کے وہ انسان گناہ پر گناہ کرے گا۔ حضرت جبریل امین کو رحم آ گیا، حضرت جبریل امین واپس گئے، اے جبریل مٹی کیوں نہیں لائے؟ مولا مجھے رحم آ گیا زمین کے اوپر، تیری یہ زمین رو رہی تھی تاکہ اس کے حصے سے انسان کو بنایا نہ جائے، اے انسان تو اپنے خاکی وجود پر اپنے خاکی وجود پر اپنے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے، ارے ذرا سو جس کے حصے سے تجھے بنایا گیا ہے وہ حصہ یہ چاہتی تھی کہ تجھے بنایا نہ جائے۔ حضرت جبریل کے بعد حضرت اسرافیل کو بھیجا جاتا ہے اور دوسرے فرشتوں کو بھیجا گیا، آخر میں حضرت اسرائیل آئے اور کہا اے زمین تجھے میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے زمین رونے لگی، آپ نے رونے کو نہ دیکھا، آپ نے گریہ کو نہ دیکھا، اس زمین کے حصے کی مٹی کو اٹھایا، یعنی وہ کون سی مٹی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے اسی جگہ
लगे कि मिट्टी को हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उठाया और उठा करके रब के हुजूर हाजिर किया। उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार हुआ और जब आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार हुआ तो हजरत अल्लाह हजरत गिरानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम, तुम्हें जब रहम नहीं आया इस मिट्टी के ऊपर तो सुनो मैं तुम्हें मुंतखब कर रहा हूँ। आज की तारीख से तुम मुंतखब किए जाते हो। जिस इंसान के वजूद को तैयार किया जाएगा और ये इंसान जब जमीन पर जाएगा, जब जमीन पर ये इंसान चलेगा, जब जमीन पर ये इंसान बोलेगा, जब जमीन पर ये इंसान खाएगा, जब जमीन पर अपनी मईशत के लिए कारोबार करेगा, जब जमीन में अपनी रिश्तेदारियां बढ़ाएगा, जब जमीन पर अपनी नस्ल इंसानियत को इजाफा करेगा, तो ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम सुनो, मैं तुम्हें मलकुल मौत का खिताब देता हूँ। कल जब हुक्म हो जाएगा तो तुम्हें भेजा जाएगा और तुम चले जाना, जिसके नाम का ऐलान होगा उसकी रूह को निकाल लेना और उसकी रूह को निकाल करके मेरी बारगाह में पेश कर देना। अब आओ जरा देखो मुसलमानों, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब हुआ, जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, जो इंसानों की रूह को निकालने की ड्यूटी जिनकी लगी है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला अगर तू मेरी ड्यूटी लगा रहा है, कल जब मैं बंदों के जिस्म से रूह को निकालूंगा तो तेरा बंदा रोएगा, तेरे बंदे को तकलीफ होगी, मगर उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उस बंदा अगर बाप है तो उसका बेटा रोएगा, वो बंदा अगर बाप है तो उसकी बेटी रोएगी, वो बंदा अगर शौहर है तो उसकी बीवी रोएगी, वो बंदी अगर बीवी है तो उसका शौहर रोएगा। ऐ मौला जब वो सब रोएंगे तो मेरे ऊपर लानो तान करेंगे। मौला फरमाता है, ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जिसे मौत आएगी उसके लिए एक बहाना कर दूंगा, कोई बीमारी में इंतकाल करेगा और कोई हादसात में जिसका इंतकाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मलकुल मौत का इंतखाब हुआ, रूह वही निकाल रहे हैं जिन्होंने जमीन पर रहम नहीं किया। अब जो लोग कहते हैं कि फरिश्ते को भी रहम नहीं आती है, आखिर रूह निकालने जाते हैं, छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, बाप की रूह निकाली जा रही है, माँ तड़प रही है, बेटे की रूह निकाली जा रही है, बीवी गिरिया जना है मगर शौहर की रूह निकाली जा रही है, बीवी की रूह निकाली जा रही है, शौहर आवेला कर रहा है, मगर कोई फरिश्ता किसी पर रहम नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की जानिब से उसका इंतखाब किया गया है। अब आओ जरा देखो मुसलमानों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी को ले जाया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार करने से पहले उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाह है, पहले पारे की चौथी रुकू है, उसका मुताला कर लीजिए आप हजरात, उसकी तफासीर को पढ़ लीजिए। उलमा फरमाते हैं जब मिट्टी को ले जाया गया तो मिट्टी के ऊपर पानी को डाला गया। एक रिवायत के मुताबिक 40,000 दिनों तक बारिशें उस पर बरसाई गई। एक रिवायत के मुताबिक जो अक्सर मुफस्सिरीन ने इस कौल को तरजीह दी है, वो कौल ये है कि 40 दिनों तक उस मिट्टी के ऊपर पानी को बरसाया गया। 45 दिनों तक बारिश होती रही, वो गम की बारिश होती रही, आहोजारी की बारिश होती रही, मुसीबत की बारिश होती रही, परेशानी की बारिश होती रही, और 40वीं रोज जो है वो खुशी की बारिश होती है। अब इंसान परेशान है, हजरत क्या मामला है, जिंदगी में ज्यादातर इंसान परेशान होता है। खुशी के मौके कभी कभी आती है, शादियां कभी कभी बचा करती है, खुशी के मौके बहुत कम मिला करते हैं। उसकी वजह यह है 39 दिन गम की बारिश आपके वजूद में मिलाया गया है और एक दिन खुशी की बारिश मिलाई गई है। अब आप जरा सोचो मुसलमानों, यानी इंसान आदमियत का वजूद तब तैयार होता है जब उसकी मिट्टी की ठेकरी पर 40 पूरा होता है। अरे ये 40वां का ताल्लुक आज कोई नया नहीं है। अरे आदम की आदमियत में भी 40 का हिस्सा है। अब कोई कहे कि 40वां नाजायज है, उससे पूछो आदम का वजूद ही 40वें दिन से। बेशक सुभान अल्लाह। एतराज करने वाले एतराज करते हैं ये 40वां कहां से साबित है? उनसे पूछो आदम अलैहिस्सलाम का वजूद नहीं साबित कर पाओगे जब तक 40वां नहीं कहोगे। 40 दिनों तक बारिश हुई, वो बात अलग है, 39 दिन गम की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश, मगर जब 40 मुकम्मल होती है तब आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को तैयार किया जाता है। और
सुनो, जब आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का ताल्लुक भी 40वीं से है। अब कोई कहे नहीं और कोई बता दो तो सुनो, उलमा बैठे हैं, हुक्मा से पूछो, अतिब्बा से पूछो, 40 का ताल्लुक किस किस के साथ है? कहते हैं हम 40वां नहीं होने देंगे। जो नहीं होने देता है उसका ताल्लुक किससे है? जब एक बच्चा जब बाप के सुर्ग से एक नुत्फा खारिज होकर माँ के शिकम में आता है तो 40 दिनों तक माँ के शिकम में वो नुत्फा रहता है। माँ के शिकम में भी 40वां मुकम्मल होता है। फिर 40वें के बाद वो नुत्फा गोश्त का लुथरा 40 दिन के बाद बनता है और फिर 40 दिन के बाद वो आज़ाए जिस्मानी बनती, हड्डियां बनती है। फिर 40 दिन के बाद उसमें शक्लें बनती हैं। फिर 40 दिन के बाद उसमें रूह फूंकी जाती है और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो 1.25 महीना 40 दिन का जब हो जाता है तब माएँ घर से बाहर लेकर निकलती है, तब मस्जिद को ले जाया करते हैं ताकि मस्जिद में बेटा सजदा कर ले, बेटी को मस्जिद में ले जाते हैं। तो या पता चला अरे 40वें का ताल्लुक माँ के शिकम में भी है और विलादत के बाद भी है। अब अगर कोई कहे कि ये 40वां जब नहीं मानते हैं तो उससे कहो तेरे वजूद को भी हम नहीं मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हमारे सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। क्योंकि 40 दिन के बाद वो नुत्फा, 40 दिन तक नुत्फा, 40 के बाद वो गोश्त का लुथरा, 40 के बाद आज़ाए इंसानी, 40 दिन के बाद शक्ल, 40 दिन के बाद रूह दाखिल की जाती है। अब बताओ कितना ताल्लुक है 40वें से। अब जो लोग चिढ़ते हैं उनसे कहो अबे तेरा वजूद भी नहीं होता अगर 40वां न होता। मगर आओ आगे बढ़ो मुसलमानों, जब वही बच्चा है, अब वही जब दुनिया में आता है और उम्र अपनी गुजारता है मगर उसे माँ दूध पिलाती है। आपको मालूम है हुक्मा का कौल क्या है, अतिब्बा का कौल क्या है, हकीमों का कौल क्या है? कहते हैं, कहने वाले कहते हैं तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आज मैदान में। मगर जरा गौर करना मुसलमानों, माँ के दूध का असर कब तक होता है? हुक्मा फरमाते हैं एक बेटे के अंदर, एक बेटी के अंदर 40 साल तक जब वो बेटा होता है, 40 साल तक वो बेटी होती है, वो 40 साल तक माँ के दूध का असर होता है और 40 के बाद घटने लगता है। अब अगर मवाजना किया जाए तो बुढ़ापा भी 40 साल के बाद शुरू होता है। अब गोया पता चला अरे माँ 40 का ताल्लुक माँ के दूध के अंदर भी पाई जा रही है, जवानी के अंदर भी पाया जा रहा है। मगर और सुनो मुसलमानों, जब यही बंदा है 40वां होता है यानी इंतकाल होता है, अब उसका 40 दिन हुआ, 40वां किया जाता है, एक साल सवाब किया जाता है। क्यों किया जाता है? बाज़ उलमा सलाह फरमाते हैं कि जब किसी की रूह परवाज होती है और परवाज हो जाने के बाद 40 दिन के बाद उसके ऊपर अल्लाह की जानी से उसकी हालत और कैफियत बदल दी जाती है। यानी अगर वो ईमान वाला था तो अब 40 दिन पर उसकी जो रिहाइश का कब्र है उसके लिए जन्नत का नमूना बना दिया जाता है। अगर वो गुनहगार और काफिर मुर्तदीन बदमज़हब था तो उसके लिए जहन्नम का जरिया बना दिया जाता है। यानी 40